Hello students, in this class we will discuss in zoology whatever you are having difficulty in NCERT page wise. We can go and discuss the doubts. Page wise NCERT. पेज वाइज जाएंगे हाँ पेज वाइज इट्स बेटर टू हैव एनसीईआरटी एवरीवन पेज वाइज on first page of human reproduction. Any doubt? Yes. First page, any doubt? No doubt. On first page, what are the important, very, very important, the male reproductive system. In that, male reproductive system is located in the pelvis region. Pelvis region. Pelvis region में रहेगा male reproductive system. Underline कर लीजिए pelvis. Okay. On second page, if we come, on 43, testes are situated in scrotum. In second page, what is very important? Each testis 250 compartment. Each testis 250 compartment called testicular lobules. Each testis हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपको. Both the testes together contain how many testicular lobule? 500 testicular lobule. Right? ओके पेज वाइज बोलना है. चलिए बोलिए इसमें कोई डाउट है तो आपके. यस सेकंड पेज पर क्या मैं ही ढूंढना. Whether seminiferous tubule contain blood vessels or interstitial spaces contain blood vessels. Interstitial spaces contain blood vessel, not seminiferous tubule. Interstitial spaces contain blood vessels. ओके और जहां पर ब्लड वेसल होंगे वहां पे एंटीबॉडीज होते हैं. ब्लड कंटेन एंटीबॉडीज. ठीक है. सो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैव ब्लड वेसल्स. Where sperm attain motility? Sperm attain motility in sperm attain motility in एपिडिडाइमिस बोलना चाहिए. एपिडिडाइमिस जो डिफिकल्ट लाइन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा. एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा. यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिथ्रल मियाटस. क्या बोले? यूरिथ्रल मियाटस बोलेंगे. एक्सटर्नल ओपनिंग. ठीक है आगे बढ़ते हुए ऑन नेक्स्ट पेज यस कोई बोलो. नेक्स्ट पेज देखो पेज नंबर 44.
Mammary gland are integrated to female reproductive system. Mammary glands are also integrated part of female reproductive system. ठीक है. कॉन्टैक्ट इनिबिशन नॉर्मल सेल में होता है. कॉन्टैक्ट इनिबिशन एंड ओवरी इज हैविंग मोर स्पेस. ओवरी के अंदर स्पेस है कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ उगोनिया रहते हैं. ओवरी इज एनफ, इट इज हैविंग एनफ स्पेस फॉर मिलियंस ऑफ उगोनिया. कितने उगोनिया होते हैं? मिलियंस ऑफ उगोनिया. बच्चों का डाउट है सर कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्यों नहीं हो रहा है ओवरी के अंदर. कॉन्टैक्ट इनिबिशन है. यहां पर ओवरियन फॉलिकल्स है ना, इधर सेवरल ओवरियन फॉलिकल्स हैं, मिलियंस रहते हैं, मिलियंस. ओके ठीक है. और कोई डाउट? तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल, it is also called mature ovarian follicle, and this mature ovarian follicle is having certain layers, outer layer and inner layers. और यहां पे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte. Graphian follicle is having secondary oocyte. Graphian follicle is this secondary oocyte is surrounded by zona pellucida. Zona pellucida. And the remaining complete structure is surrounded by here, surrounded by layers of cells. है ना, बहुत सारे cells हैं इधर. There are many layers of cells. There are many layers of cells. Here completely you have to fill the cells. This complete. It is the responsibility है ना. एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. जबकि ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज एक्सरसाइज में है क्वेश्चन ही. सो व्हाट इज द कैविटी हियर इन ग्राफियन फॉलिकल? एंट्रम बोलना चाहिए. एंड द आउटरमोस्ट लेयर इज थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, एंड इनर लेयर इज थीका इंटरना. The cells around the secondary oocyte, the cells around the secondary oocyte facing antrum is called cumulus oophorus. Cumulus oophorus. Cumulus oophorus बोले हम. And the cells facing antrum, it is called membrana granulosa. Now if a question, what are the layer of cells? What are the layer of cells in Graafian follicle from outer side to inner side? तो बोलेंगे सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, देन मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा. उसके बाद है देखिए सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte के बाद है क्यूमुलस oophorus. क्यूमुलस oophorus. अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी डायग्राम के ऊपर, डायग्राम के ऊपर बन सकते हैं. जैसे कि व्हाट इज द लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट बिलो द थीका इंटरना? थीका इंटरना के नीचे कौन से सेल्स हैं बोले? थीका इंटरना के नीचे कौन से सेल्स हैं? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. अब ये ग्राफियन फॉलिकल इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के. ग्राफियन फॉलिकल पढ़िए.
ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोल रहे हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स। ओके, एक और बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए, कार्पस लूटियम क्या तैयार करता है? कार्पस लूटियम वेदर इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन? कार्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और बोथ? अगर ऑप्शन में बोथ रहे तो बहुत बढ़िया है, बोथ ले लीजिए। कार्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बोल सकते हैं हम, बोथ रहा तो। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना रहा तो प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ग्राफियन फॉलिकल थीका इंटरना से भी होता है। थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। और कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं आपको, कार्पस लूटियम से दो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों भी बनते हैं। अगर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो प्रोजेस्टेरॉन लेंगे हम, ज्यादा प्रायोरिटी, बिकॉज कार्पस लूटियम मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन आप क्यों नहीं लेना बोल रहे? एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम कार्पस लूटियम एज वेल एज प्रोड्यूस फ्रॉम थीका इंटरना ऑफ ग्रैनुलोसा, दिस ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं हम। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, ये भी एस्ट्रोजन बनाता है। एक और क्वेश्चन है, जरा डीप है क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेजल्स इनसाइड द एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं, जो डायग्राम हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऐसा एंडोमेट्रियम यहां अंदर ऐसे लाइनिंग्स हैं, देखिए एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये ब्लड वेजल्स हैं। हु इज प्रोड्यूसिंग दोज ब्लड वेजल इनसाइड द endometrium lining? Which hormone is responsible for formation of blood vessels in endometrium? तो बोलेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को बताया था मैं ऑलरेडी। हु प्रोड्यूसेस एंडोमेट्रियम? एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस एंडोमेट्रियम, मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। ओके, oogenesis के अंदर मैं बताया हूं, oogenesis के अंदर फर्स्ट what is present in oogenesis? oogonia are present. oogenesis में सबसे पहले क्या होता है? oogenesis के अंदर सबसे पहले क्या होगा? oogonia होगा, oogonia। First oogonia is present, and these oogonia are dividing by means of mitosis and forming large number of oogonia. By what type of cell division? Mitosis type of cell division. Large number of oogonia are formed. Then this oogonia enlarges in size and become primary oocyte. प्राइमरी oocyte, अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, प्राइमरी oocyte एंड oogonia, हाउ दे डिफर्स? ये भी 2n, ये भी 2n, सब 2n है, ये सब 2n है। देयर इज नो डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर कब डिफरेंस आता है? मियोसिस के बाद आता है। मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है। Up to this 2n diploid, everyone is diploid. Then how oogonia and primary oocyte are differ? Oogonia and primary oocyte differ in their size. Okay, primary oocyte enlarges in size. Then primary oocyte get arrested. Primary oocyte get arrested in which stage? Prophase 1 stage. Okay, prophase 1 में arrest हो जाएगा ये, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा, प्रोफेज 1 में। ओके, नाउ दिस प्राइमरी oocyte डिवाइड बाय meiosis 1
and form one smaller cell and one larger cell. The smaller cell is called first polar body, and the larger cell is called secondary oocyte. अब क्वेश्चन ये है, हाउ द प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte डिफर. साइज फिर एक बार बोलेंगे. प्राइमरी oocyte and secondary oocyte, how they differ? They differ in chromosome number. Here they are 2n, now they become n. Diploid से haploid हो गया है. Now again this secondary oocyte divide by meiosis 2 and form a second polar body and a large ovum. ठीक है, large ovum. This is happening only when sperm penetrate secondary oocyte. अब ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हम बुक में देखने वाले हैं. फ्लो चार्ट तो यहां पे है पूरा. अभी हम जो है पेज नंबर 48, एनसीईआरटी पेज नंबर 48, फ्रॉम बॉटम सेकेंड पैराग्राफ. पेज नंबर 48 फ्रॉम बॉटम सेकेंड पैराग्राफ. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. How they are different? Spermatogenesis and oogenesis, what is the main difference? Spermatogenesis is a continuous process which starts at puberty and continues throughout the life, whereas oogenesis is discontinuous process. This is the main difference, and remaining several differences are there. स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, oogenesis में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है. बहुत सारे और बाकी के डिफरेंसेस तो आपको मालूम है. इन oogenesis one primary oocyte gives rise to one ovum. Okay, one primary spermatocyte oocyte gives rise to one ovum. ठीक है, हाँ क्लियर. अभी देखिए आगे क्या है. oogenesis initiated during embryonic development. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है embryonic development, अंडरलाइन करके रखना. oogenesis कब स्टार्ट हुआ? embryonic development स्टार्ट हो गया when a millions of gamete producing cells oogonia are formed within each ovary. each भी यहां पे बड़ा खतरनाक वर्ड है. each, समझे? millions of oogonia are formed during embryonic development in each ovary. मतलब इसमें एक 1 मिलियन रहे तो उसमें एक 1 मिलियन रहेंगे. No more oogonia are formed and added after birth. ये भी अच्छा याद है बोला. एक बार oogonia बन गए, यहां पे मिलियंस ऑफ oogonia बन गए, इसके बाद कोई एडिशन नहीं होगा. मिलियंस ऑफ oogonia कितने बन गए? मिलियंस ऑफ oogonia बन गए. समझो यहां पे हम 4 ड्रॉ कर रहे हैं oogonia, बट एक्चुअली में कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ oogonia. These cells start division, enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte. यहां तक पहुंच गए हम. oogonia, they enter into meiosis 1. Whether they complete meiosis 1 in embryonic development? No. oogonia just enter into meiosis 1 and get arrested in prophase 1 stage. Arrested in prophase 1. Meiosis 1 is not completed. They get arrested in prophase 1. Called primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle. ठीक है, मतलब ये प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर बनेगी सेल की, and what is that layer called? Granulosa cells. A layer of cell called granulosa cell is formed around the primary oocyte. Now they are called primary follicle. पहले बनेगा primary oocyte, फिर बनेगा primary follicle. आप बोलेंगे primary oocyte और primary follicle में क्या डिफरेंस है? Primary oocyte मतलब it is a single cell not surrounded by any more cell. Primary oocyte. Primary follicle means primary oocyte surrounded by a layer of granulosa cell is called
प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। हाँ, ये सब कहानी कब चल रही थी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हो रहा है अभी तक। ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। मिलियंस ऑफ उगोनिया बने थे, मतलब मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte थे, मतलब मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बने थे। यहां तक की कहानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो गया है ये। ओके, नाउ आफ्टर बर्थ देर इज नो मोर एडिशन ऑफ प्राइमरी oocyte, देर इज नो मोर एडिशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, देर इज नो एडिशन ऑफ उगोनिया। इट गेट अरेस्टेड, जस्ट स्टॉप हो गया oogenesis, जस्ट स्टॉप हो गया। प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में रुक गया है। कौन से स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में रुक गया है ये। फ्रॉम प्यूबर्टी टू फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और यहां पर अब क्या होने वाले हैं? प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होना शुरू होंगे? डीजनरेशन। कितने प्राइमरी फॉलिकल हैं बोल तो? मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल है। कितने? मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल हैं। अब वो डीजनरेशन होना शुरू हो गए। एट प्यूबर्टी कितने प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे, बाकी के सारे खत्म हो जाएंगे। बाय व्हाट प्रोसेस? अट्रेसिया बोलते हैं। What is mean by follicular atresia? Degeneration of primary follicle. Degeneration of primary follicle is called follicular atresia, and 60,000 to 80,000 primary follicles are remain in each ovary. ये भी लाइन बहुत अच्छी है, in each ovary. हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 बचे हैं, बाकी के सारे डीजनरेट हो गए। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell. अब ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और एक लेयर अगर सेल का बनेगा तो मैं इसको बोलने वाला हूं सेकेंडरी फॉलिकल बोलूंगा मैं। What is the layer of cell? Granulosa cell. Now they are secondary follicle. फिर आगे पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहां तक सबको क्लियर है क्या? किसी को डाउट है? The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. The theca layer is organized into inner theca interna, outer theca externa. Theca interna कब आ रहे हैं? externa interna कब आ रहे हैं? tertiary follicle में आ रहे हैं, secondary follicle में आ रहे हैं? tertiary follicle में आ रहे हैं। और tertiary follicle में ये एक बात बताया जा रहा है, यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रम। आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज दिस स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 1। मैं बताया हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अंदर ये प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte, ये वाला प्राइमरी oocyte एंट्रम बन गया और ग्रैनुलोसा के 2 लेयर बन गए, और उसके बाद क्या बना? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। नाउ इट इज कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल। इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल द प्राइमरी oocyte complete meiosis 1 and form secondary oocyte. In which follicle meiosis 1 is completed? बात कहां से शुरू हो रही थी? यहां पे बच्चे जरा डाउट करते हैं। पहले मैं बता रहा था प्राइमरी oocyte बनेगा, फिर उसके ऊपर एक ग्रैनुलोसा की सेल बनेगी, फिर उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल। सेम स्ट्रक्चर में पहले प्राइमरी oocyte रहेगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। इन टर्शियरी फॉलिकल meiosis 1 is completed, forming a larger cell, secondary oocyte, and a smaller cell, first polar body. What is the destination of this first polar body? First polar body degenerates. There is no future of first polar body. It is an unequal division resulting in a formation of a large secondary oocyte and a tiny first polar body. The secondary oocyte retain bulk of the cytoplasm.
जितना भी साइटोप्लाज्म है किसको मिला है? सेकेंडरी oocyte को। न्यूट्रिएंट भी सबसे ज्यादा किसको मिले? सेकेंडरी oocyte को। सो फर्स्ट पोलर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिले, दैट्स व्हाई इट डीजेनरेट्स। आगे क्या लिखा है? कैन एनीवन थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। Unequal cytokinesis help in transferring all the nutrients to one secondary oocyte. What is the advantage of this? अगर हम इक्वली देते, इसको भी इक्वल साइटोप्लाज्म, इसको भी इक्वल साइटोप्लाज्म देते, तो फाइनल में 2 ओवम बनते थे। 2 ओवम मतलब एक एक बार में 2-2 बेबीज बनते थे। अगर सब केसेस में 2-2 ओवम बनेंगे, एट ए टाइम हाउ मेनी बेबीज? 2 बेबीज। एट ए टाइम 1 बेबी है तो ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन ये हालत है। एट ए टाइम 2 बेबीज रहा तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन फिर और क्या होता था मालूम नहीं। ठीक है। सो नेचर इटसेल्फ कंट्रोलिंग बर्थ। तो ह्यूमन को इतना थिंक करने की जरूरत नहीं है, नेचर खुद बर्थ कंट्रोल कर रहा है। 4 स्पर्म बनते हैं एक बार स्पर्माटोजेनेसिस होता, और एक बार oogenesis होता तो एक ही ओवम बनता। अगर ओवम भी 4 बनते तो ओवम भी 4 बनते, स्पर्म भी 4 बनते, बोल तो एक एक बार में 4-4 बेबीज, फीटस, एम्ब्रियोस। समझ में आ गया? सो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है पॉपुलेशन। डज एनी एडवांटेज? बोल तो बोलना एडवांटेज है ना, इधर एडवांटेज है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 ओवम instead of 4 ovum. Only 1 ovum is formed, which naturally control population size. Does the first polar body divide or degenerate? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या डिवाइड होगा, क्या डिवाइड नहीं होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी वेदर इट डिवाइड और डू नॉट डिवाइड। फर्स्ट पोलर बॉडी if it divides, suppose if it divides, it will form 2 more polar bodies. ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 पोलर बॉडी बन जाएंगे इसका मतलब। if it is not dividing, then how many polar bodies are there? 2 polar bodies. अब कितने पोलर बॉडीज हैं? कितने पोलर बॉडीज हैं? ये 1, ये 2। ठीक है। अगर ये डिवाइड हुआ तो कितने पोलर बॉडीज हैं? ये पोलर बॉडी भी डिवाइड होगा तो अब कितने पोलर बॉडीज बचे? 3 ही बचे ना। 4 कौन बोले वो? 3 पोलर बॉडीज, क्योंकि ये डिवाइड हो गया है। आप मुझे ये बोलिए, oogenesis में अब 3 पोलर बॉडीज बनेंगे क्या 2 पोलर बॉडीज बनेंगे? ये बोलो मेरे को बस। तो आगे लिखा है बुक में, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस। वी आर नॉट क्लियर वेदर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड और नॉट डिवाइड। तो क्वेश्चन में होता है, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड इन वन oogenesis, तो वहां पे वर्ड जो मैक्सिमम था ना, वो बहुत खतरनाक था। मैक्सिमम वर्ड की वजह से कितने पोलर बॉडीज लेना पड़ता आपको? 3 पोलर बॉडीज लेना पड़ता। मिनिमम कितने पोलर बॉडीज बनेंगे? 2 पोलर बॉडीज बनेंगे। अगर डिवाइड हुआ फर्स्ट पोलर बॉडी तो कितने मैक्सिमम कितने बनेंगे? 3 पोलर बॉडीज बनेंगे। समझ नहीं बात? क्लियर है ना? और एग्जामिनर को भी मालूम है बच्चों को कैसा कंफ्यूज करना है। सीधा ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा oogenesis में कितने पोलर बॉडीज बने, ऐसा पूछ नहीं सकता एग्जामिनर, क्योंकि वहां पर 2 भी पोलर बॉडीज ले सकते हैं, 3 भी पोलर बॉडीज ले सकते हैं। तो इसलिए उसको एक वर्ड देना पड़ेगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म? 2। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म? 3। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है ना आपको? अब कोई डाउट है तो बोलिए। यस, और कोई डाउट? प्राइमरी oocyte से के बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम तक, बर्थ हो गई फीमेल की,
बर्थ से लेकर प्यूबर्टी की टाइम तक यहां पर प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो रहे हैं। बोला मैं कहां पे डीजनरेट हो रहे हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट। क्या मैं ऐसे बोला प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डीजनरेटिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? बोला मैं एट द प्यूबर्टी? बोला नहीं। In between this birth to puberty, primary follicle degenerate. That process is called follicular atresia. ठीक है? यस, प्राइमरी, अगर मैं बोल रहा हूं प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, वो भी डीजनरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड है वो। सो एग्जाम विल बी ऑन संडे। एग्जाम संडे को है एज यूजुअल। और कोई डाउट? पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करना है। ट्रू और फॉल्स। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल बिल्कुल गलत है। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल बोलना चाहिए, सर्टोली सेल बोलना गलत है। इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज गिवन स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, बिल्कुल सही है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नॉरिशमेंट न्यूट्रिशन टू द स्पर्म बोलना ट्रू है। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, गलत। लेडिक सेल कहां आना चाहिए? टेस्टिस में आना चाहिए, टेस्टिस में आना चाहिए लेडिक सेल। लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस और इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस आना चाहिए। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, ट्रू, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। oogenesis takes place in carpus luteum, गलत। oogenesis not taking place in carpus luteum, oogenesis takes place in ovary। menstrual cycle ceases during pregnancy, बिल्कुल सही है। ceases मतलब stop, menstrual cycle stop during pregnancy, बिल्कुल सही है, true। presence और absence of hymen, hymen का presence या absence it is not a reliable indicator of virginity or sexual experience, बिल्कुल true है। Question number 20, how many eggs are released by a human ovary in a month? One ovary, one। How many eggs are released by a human ovary in a month? One। How many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? One। If a mother giving birth to identical twins, how many eggs are formed? One। Would your answer change if the twin born are fraternal? Yes। अगर twins fraternal हैं तो 2 eggs रिलीज होंगे। If twins are identical, only 1 egg is released. If twins are non-identical, dizygotic or fraternal, 2 eggs are released. How, next question है 21, how many eggs do you think were released by the ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies? If the female dog is giving birth to 6 puppies, that means that female dog has released how many eggs? 6 at a time, 6 डॉग में है ये एट ए टाइम 6। एंड पेज नंबर 53 आल्सो, पेज नंबर 53, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सेकंड पैराग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड पैराग्राफ, एंड मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज और एग्जामिनर खास करके यहां से क्वेश्चन निकालते हैं और बच्चे खास करके गलत करके आते हैं। सबको मालूम भी है, बच्चों को भी मालूम है यहां से क्वेश्चन आता और जाके गलत करके चाहते हैं। क्या है ऐसा देखेंगे। ओके
जब हम हार्मोन से जब शुरू करेंगे, यहां पे 1 2 3 4 5th लाइन से अगर हम पढ़ना शुरू करें, प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू and produces several hormones like human chorionic gonadotrophin, HPL, estrogen, progestogens. समझ नहीं बात? मतलब प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन बोल रहा है. What is placenta? Everyone knows it is a connection. It is the organic connection for food supply, nutrition supply, oxygen supply, antibody supply, and removal of waste material also through placenta. ठीक है? And placenta forms barrier between mother's blood and fetus blood. मतलब ये रहा मदर ब्लड, एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, दो रिवर हैं समझो, ये रिवर 1, ये रिवर 2, ये दोनों रिवर के बीच में एक बैरियर है और इस बैरियर का नाम है प्लासेंटा. अब ये प्लासेंटा क्या करने वाला है? रिवर 1 से जो भी न्यूट्रिएंट है प्लासेंटा निकालेगा, रिवर 2 को देगा. समझ गए? हम क्या समझ रहे थे, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं. ये सोचना बिल्कुल गलत है. मैं क्या बोल रहा हूं? प्लासेंटा एक्ट एज ए बैरियर between the maternal blood and fetal blood. Maternal blood and fetal blood are not having direct connection. They are not intermixing. There is a barrier, and the function of that barrier is to take the nutrients from maternal blood and transfer it to fetal blood. इसके अलावा यहां पे ये भी लिखा हुआ है, प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन. प्लासेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन. ये नहीं बोला एम्बिलिकल कॉर्ड एक्ट एज एंडोक्राइन. लिखा है क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड एक्ट एज एंडोक्राइन बोल तो गलत. प्लासेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन. और प्लासेंटा के हार्मोन बताए यहां पे, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस. इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाना चाहिए माइंड यहां पे. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन ओवरी से भी तैयार हो रहे थे, कार्पस लूटियम से भी तैयार हो रहे थे, प्लासेंटा से भी तैयार हो रहे हैं. दे आर आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम placenta, no doubt. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also produced by the ovary. In the later phase of pregnancy, that is in last trimester, ovary also produces one hormone, relaxin. ठीक है? लिस्ट बढ़ते चले जा रही है हार्मोन की. हार्मोन्स की लिस्ट बढ़ते जा रही है. अब कितने हो गए? 5 हार्मोन हो गए. देखो, एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टोजन हो गया, रिलैक्सिन भी हो गया. लेट अस रिमेंबर, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. यहां पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन का नाम नहीं लिखा है. देखो, वेदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन नेम्स आर गिवन. अब क्वेश्चन आया एग्जाम में, एग्जामिनर कैसे बनाता क्वेश्चन जरा सुनो. Which of the following hormone is produced only during pregnancy? Only during pregnancy. Option 1, estrogen, progestogen, समझ नहीं आ रहा, ऑक्सीटोसिन, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और एचसीजी. कौन सा लेते हैं? तो सबसे पहले बच्चे क्या है, कच्चा पक्का पढ़ के जाते हैं. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन अब भी पढ़े ना, प्रेगनेंसी में तैयार हो रहे हैं बोल के. अब भी पढ़े ना? हाँ बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, लेकिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा है वहां एग्जाम में. एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी में तैयार होंगे, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन. ऐसा नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ओनली प्रोड्यूस इन प्रेगनेंसी? नॉट ओनली प्रोड्यूस इन प्रेगनेंसी, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन नॉर्मली भी तैयार होता है, प्रेगनेंसी में भी तैयार होता है. समझ रहे हैं आप एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन? आसानी बात है, लेकिन आसान तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. वो कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है, लेकिन ट्विस्ट कर रहा है. जो बच्चे टाइम देके नहीं पढ़े, जो बच्चे रिवीजन नहीं करे,
उनका तो 100% गलत होने वाला, चाहे एक दो बार पढ़ के गए तो गलत होने वाला है क्या नहीं? क्योंकि उनको मालूम रहता एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में भी तैयार होता. नथिंग रॉन्ग इन सेइंग एस्ट्रोजन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन प्रेगनेंसी. इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आगे लिखा, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds इन मैटरनल ब्लड. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ ऐसे भी हार्मोन है जिनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वुमन के बॉडी में, प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है. नॉर्मल टाइम में भी तैयार होते हैं ये, बट प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा हो जाते हैं. कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन, थायरॉक्सिन हार्मोन. तो थायरॉक्सिन, ये सब के फंक्शन लिखाया हूं मैं. थायरॉक्सिन इंक्रीजेस एक्सेलरेट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है वो. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होके 7 दिन हो गए हैं. अब होगा इंप्लांटेशन. इंप्लांटेशन होगा इन विच स्टेज? इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. ठीक है. सो अब यहां पे जर्म लेयर बनेंगे इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन. इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन होते ही, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पर. कितने दिन के बाद नहीं, इंप्लांटेशन हो गया, जर्म लेयर बनना शुरू. इमीडिएटली आफ्टर इंप्लांटेशन जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, जर्म लेयर फॉर्म्ड. ओके. द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास होता है ना ब्लास्टोसिस्ट का, so this is trophoblast of the blastocyst and the inner cell mass. The inner cell mass पहले दो जर्म लेयर बनाते हैं, पहले दो जर्म लेयर. आउटर साइड एक्टोडर्म बनाते हैं, इनर साइड एंडोडर्म बनाते हैं, एंड लेटर ऑन मिडिल सेल से बनाते हैं मीसोडर्म. आउटर लेयर ऑफ इनर सेल मास, बिल्कुल मैं ट्रोफोब्लास्ट नहीं बोल रहा हूं, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? आउटर लेयर ऑफ इनर सेल मास एक्टोडर्म बनाएगा. एक्टोडर्म फर्स्ट, फिर इनर लेयर ऑफ इनर सेल मास क्या बनेगा? एंडोडर्म बनेगी. सेकंड जर्म लेयर फॉर्म एंडोडर्म बनेगी सेकंड. फिर मिडिल लेयर से क्या बनने वाले हैं? मिडिल लेयर से बनने वाला है इनर सेल मास से मीसोडर्म. अब कुछ बच्चों का यह डाउट था कि ये जर्म लेयर है, जर्म लेयर से देखिए यह इनर सेल मास है, इससे बना एक्टोडर्म, इससे बना मिडिल मीसोडर्म, इससे बना अंदर का एंडोडर्म. समझने आ जाना चाहिए. ठीक है. व्हाट इज द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट? कैन वी कॉल दिस एज एंट्रम? नो, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. अगर मैं कैविटीज के बारे में बात करूं तो पहली कैविटी जो बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंट्रम बनती है. व्हाट इज द फर्स्ट कैविटी फॉर्म? एंट्रम. एंड लेटर ऑन एंट्रम बिकम ब्लास्टोसील, एंड ब्लास्टोसील लेटर ऑन बिकम्स अर्कियंटिरॉन, अर्कियंटिरॉन इन गैस्ट्रुला स्टेज, अर्कियंटिरॉन इन गैस्ट्रुला स्टेज, ब्लास्टोसील इन ब्लास्टोसिस स्टेज. कैविटीज हैं ये.
अब कुछ बच्चों का ये पूछना था कि एक्टोडर्म से कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं, एंडोडर्म से कौन से बॉडी पार्ट बनते हैं. So it is very, very difficult to remember all the body parts. समझे, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये, लेकिन पढ़ना पड़ेगा एमबीबीएस में. यहां पर आपको क्या याद रखना है एट दिस लेवल, नीट के लिए हम क्या क्या याद रखेंगे. इफ यू ओपन फर्स्ट ईयर बुक अगर हम ओपन करें एंड इफ यू गो टू द न्यूरल कंट्रोल चैप्टर, वहां पे लिखा हुआ रहता एक्टोडर्म लिखा हुआ रहता. इट गिव्स राइज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीजें जो है एक्टोडर्म से बन रहे हैं. समझे, एक्टोडर्म से बन रहा है. जैसे ही आप हार्ट टॉपिक में जाओ, हार्ट सर्कुलेशन चैप्टर में फर्स्ट ईयर की बुक में वहां लिखा हुआ रहता मीसोडर्म गिव्स राइज टू हार्ट. इफ यू गो टू एनिमल किंगडम चैप्टर, फर्स्ट ईयर की बुक में एनिमल किंगडम चैप्टर, वहां पे लिखा हुआ रहता स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड गिव्स राइज टू, नोटोकॉर्ड डेवलप फ्रॉम मीसोडर्म बोल के लिखा हुआ, नोटोकॉर्ड बैकबोन. और अगर और क्या याद रखना, गोनाड्स भी मीसोडर्म से बनेंगे, टेस्टिस, ओवरीज, आपकी कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा, कनेक्टिव टिश्यू आपका, मस्कुलर टिश्यू आपका, ये सब मीसोडर्म से बन रहा है, मीसोडर्म से. बिल्कुल एक भी वेस्ट नहीं है इसमें. आपको नीट में अगर जर्म लेयर का पूछेगा, इसमें से पूछेगा. नेक्स्ट एंडोडर्म. एंडोडर्म से क्या बनने वाला है भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक्ट है, यूरिनरी सिस्टम का ट्रैक्ट है. इट इज ऑल डेवलपिंग फ्रॉम एंडोडर्म. एंडोडर्म से बन रहे हैं. इतने तो याद रखना ही है, देयर इज नो चॉइस. हाँ, फर्स्ट ईयर के बुक में अलग अलग जगह पे लिखा हुआ रहता, मैं एक जगह करके दे दिया हूं. अब यहां पे ब्लड कहां से बना बोल तो क्या बोलना. अब जरा ट्विस्ट करे, ब्लड कहां, आप बोले ब्लड तो लिखा नहीं सर हमारे, ब्लड तो लिखा नहीं. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. अब वो आ गया, अंदर आ गया वो, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, इतने तो याद रखना ही है, कोई दूसरा चॉइस नहीं है. ओके, तो आफ्टरनून में जो है हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक में कोडोमिनेंस पढ़ना है हमारे को. एक कोडोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लियोट्रॉफी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है आफ्टरनून में. ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं. उसके बाद जो है हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी सेम ऐसे ही जो आपके मेन डाउट थे वो क्लियर कर लेंगे. ओके, विल स्टॉप हियर.